بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن تو آزاد ہو گیا ہے, نگاہ و دل ہے غلام اب بھی, پیے ہوئے ہیں شراب غفلت, یہاں پہ سب خاص و عام اب بھی. غلط ہے ساقی جو کہہ رہے ہیں, بدل گیا ہے نظام محفل, وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں, وہی شکستہ سے جام اب بھی. آج ایک بہت ہی اہم ایشو ہے. آئین پاکستان کی صریحاً خلاف ورزی ہو رہی ہے. میرے وطن کے کمزور, مجبور اور مقہور لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے. چوک مکی مسجد کی دکانات امپرومنٹ ٹرسٹ قائم ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر قرآن اندازی کے ذریعے سے الاٹ ہوئی. یہ سن 1968-1969 کی بات ہے کہ جب آتش جوان تھا. اب تو داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان لوگوں کی وہاں پہ خدمت کرتے ہوئے. ایک ایک مرلے کے خالی پلاٹ ان کو دیے گئے. اپنی گرہ سے انہوں نے وہ تعمیر کیے, اس پر اپنے بچوں کی روزی روٹی کرنے لگے. جو کہ امپرومنٹ ٹرسٹ جب تحلیل ہوا, قانون میں بے شک تبدیلی آئے, لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ جو پہلے حکومت معاہدہ کر چکی ہے, جو پہلے لا کے قانون کے پروسیسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں, ان کی پاسداری. 1976 میں بلدیہ میونسپل کمیٹی نے ان کو بے دخل کرنے کے لیے نوٹسز جاری کیے. لامحالہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. وہاں سے ان کا آرڈر جو ہے وہ سٹے ہو گیا. ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. ریٹ پٹیشن نمبر 64/1976 جو ہے, جس کے اوپر ڈی سی صاحب کو ڈائریکشن ہوئی کہ آپ اس کو ایز پر لا پروسیڈ کریں. اب باقاعدہ اس کی کمیٹی بنی, باقاعدہ نقشہ جات منظور ہوئے, اور عدالت عالیہ کا جو حکم ہے 16/8/1995 اور 17/7/1999 جو ڈپٹی کمشنر صاحب نے عدالت عالیہ کے حکم کے بعد فرمایا کہ آپ بلدیہ میونسپل کمیٹی جو ہے وہ ان کی فائلیں تیار کرے اور ان کے مالکانہ حقوق کی منظوری کے لیے, اس کے اجراء کے لیے فائلیں جو ہے وہ پنجاب حکومت کو سبمٹ کرے. لیکن یہ در بدر ہو رہے ہیں. ان کے بچے روزی سے محروم ہیں. موجودہ مہنگائی کے دور میں اتنا عرصہ پہلے جنہوں نے ان زمینوں میں اپنا خون بویا تھا, آج وہ بیچارے قسم پرس ہیں, پریشان. میرا التماس ہے, اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ سبزی منڈی کی جو دکانیں تھیں امپرومنٹ ٹرسٹ کے تھرو وہ نیلام کی گئی, تو اس کے مالکانہ حقوق دے دیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے پاس جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی گئی. آئین پاکستان ایچ اینڈ ایوری سٹیزن کو اکارڈنگ ٹو لا ٹریٹ کرنے اور مساویانہ حقوق دینے کے کا حکومت کو پابند کرتا ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے التماس کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب سے التماس کرتا ہوں, چیف سیکرٹری پنجاب سے التماس کرتا ہوں, میں کمشنر بہاولپور سے التماس کرتا ہوں, ڈپٹی کمشنر صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ خدا را ان کا حق ان کو دیجیے اور یہ قانون کے مطابق اس کو ڈیل کیجیے. حافظ اکرام صاحب گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ یہ ہمارے محترم ہیں, ہمارے باس ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایک مرلے کے خالی پلاٹ 1969 میں ہمارے بڑوں کو اس وقت کی انتظامیہ نے محکمہ امپرومنٹ ٹیسٹ نے خالی پلاٹ بھی آباد جگہ تھی یا الاٹ کیے تھے. وہ خالی پلاٹ ہم نے اپنی جیب سے, اس وقت ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے اپنی جیب سے تعمیر کی ہیں جی, اور یہاں کاروبار شروع کر دیا تھا.
उस वक्त महकमा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने वादा किया था हमारे बड़ों से कि आपको जल्द कीमत मुकर्रर करके कमेटी जारी कर दिए जाएंगे। तो महकमा तहरीर होने के बाद इसका इंतज़ाम बल्दिया के पास आ गया। तो हमने बल्दिया को आगाह किया कि हमारा मामला महकमा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ ये हुआ है। तो बल्दिया ने हमारे इस महकमा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रोग्राम को तस्लीम किया और ये 1985 में रेगुलेशन पास हुई है। 1985 में ही बल्दिया की लैंड कमेटी ने हमारे हक में सिफारिशात दी हैं और फैसला किया है कि इनको जब महकमा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने बिठाया था तो कीमतन ये जगह देने के लिए बिठाया था, किराए के लिए नहीं बिठाया था। ये लैंड कमेटी के फैसले में तहरीर है। और यही चीज़ बल्दिया के जनाब ऐवान जो है बल्दिया के ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर इस चीज़ की मंजूरी दी है करारदाद की सूरत में। वो हमारे पास मौजूद है, वो फैसला बल्दिया का ऐवान बल्दिया का वो फैसला भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद जब हमने रिट पिटीशन दायर किया बावलपुर हाई कोर्ट में तो वहाँ बल्दिया के चेयरमैन साहब ने रूबरू कोर्ट बयान भी दाखिल करवाया है, बयान रिकॉर्ड करवाया है। और वहाँ ये जो रेगुलेशन पास हुई है ये वहाँ हाई कोर्ट में जमा करवाई है। हाई कोर्ट को मुतमईन किया है कि जनाब हमने रेगुलेशन पास कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट अगर इनको हुकूक देना चाहे, अराजी देना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपने मकाम पे यहाँ इसका प्रोसेस किया, हमें ये पटमेटी जारी करने का। वो प्रोसेस के 15 के करीब खतूत है हमारे पास जो माबैन हुए हैं डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब बहावलपुर और जनाब चीफ ऑफिसर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहब, इनके माबैन ये खतूत का तबादला हुआ है, तहरीर हुई है। उनमें वाज़ेह तौर पे ये है कि इन लोगों को हुकूक जारी कर दिए जाए। और बल्दिया ने डिप्टी कमिश्नर साहब से इस्तदा किया है, चेयरमैन साहब बल्दिया ने, कि जनाब आप मंजूरी दें और ये हुकूमत पंजाब से इसकी हम मंजूरी हासिल करें। इस चीज़ के बाद जब बल्दिया ने कुछ नहीं किया तो हम 1995 में डिप्टी कमिश्नर साहब की अदालत में गए हैं। वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने दोनों फरीकों को समाअत किया है। समाअत करने के बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि आपने सारा मामला तो तस्लीम किया हुआ है, ज़्यादा फाइल तैयार करें और 15 दिन के अंदर मंजूरी हासिल करें। बल्दिया ने जब ये नहीं किया तो हम दोबारा डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए। दोबारा फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म दिया कि भाई आप इनके हुकूक तस्लीम कर चुके हो, लिहाजा इनको फाइल जो है वो ऊपर मंजूरी के लिए भिजवाएँ और मंजूरी हासिल करें। आपका मुतालबा क्या है? अब हमारा मुतालबा ये है कि जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आपके ये 2 फैसले हैं, आप इस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाते। तो हमें पता चला बल्दिया कहते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब के पास इख्तियारात नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने अहकाम दिए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बतौर उनके अहकाम हैं, वो अमल दरामद कराने के पाबंद हैं। उन्होंने खुद हुक्म दिया बल्दिया को और बल्दिया ने खुद उनको कहा था कि आप जनाब ये करें। डिप्टी कमिश्नर साहब को भी भिजवाएँ, हुकूमत को भी भिजवाएँ। तो ये सारी चीज़ें हक़ायक़ हैं, रिकॉर्ड है। जनाब इनको चाहिए हमारे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को कि बल्दिया की रिपोर्ट पे इन्हिसार न करें। बल्दिया की रिपोर्ट हक़ायक़ को छुपा कर दी जाती है। ये जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जब रिपोर्ट तलब करें तो उसकी भी तहकीक करें, हमारी रिकॉर्ड की भी तहकीक करें। अगर हम हक़ पे मबनी नहीं है तो हमें बेशक मसला करें। जी शफीक साहब, यूसुफ साहब। जी प्लीज। बात ये है कि हमें ये जो है ना अलाटमेंट की पर्चियाँ मिली हैं, उसके बाद इस हिसाब से 2 फैसले जो है ना वो हमारे हक में कीमतें भी लग चुकी हैं। उसके बाद आप हमारे वो चलान दें और पट्टा मलकियत का हुक्म जारी करें। हमारा ये बुनियादी मुतालबा है कि हमें आपको के मलकियत से महरूम ना सबसे पहले तो मैं चीफ जस्टिस को पाकिस्तान से, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मेरा एक मुतालबा है कि हमें पहले तो फैसले दिए गए कि आपको इस चीज़ का मालकाना हकूक़ दिए जाते हैं। मेरा इनसे ये सवाल है कि सब्ज़ मंडी के ताजरों को आप उनको मालकाना हकूक़ दे रहे हैं, क्या उनके पास पैसा है? और हमें इसलिए हकूक़ नहीं दिए जा रहे कि हम गरीब हैं, इसलिए
खुदा के लिए हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान के इसी माशरे का एक हिस्सा है। खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। चीफ जस्टिस साहब से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से भी अपील है। हमारे यही मुतालबा है कि जो हमारे बुजुर्गों ने इधर देखेंगे सफ़ेद दाढ़ी इनकी हो गई, इनकी उम्रें गुजर गई, हमारे बुजुर्ग हैं, हम धिक्के खा रहे हैं, हम किधर जाए? इतनी महंगाई के बावजूद भी हम किस साइड पे जाएं? किस कानून का दरवाज़ा खड़काएं? हम इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, जहाँ जाते हैं वो रिश्वत मांगते हैं, हमारे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो इनके मुतालबात को फौरी तौर पर जो है वो माने, उस पर अमल दरामद कराए, इनको मालकाना हकूक दिए जाए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर हमारा ये मुतालबा है कि इंसानी हकूक की वायलेशन ना की जाए, आनी पाकिस्तान की वायलेशन ना की जाए, और इनका हक जो है वो हकदार को उनके दर पे मिलना चाहिए।